students, welcome back to Pradesh Institute of Education. You are learning with your maths teacher Deepika Yadav ma'am. So today we are going to start this new chapter, chapter number 2 in our book, and its name is Linear Equations in One Variable. तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या होती है लीनियर इक्वेशंस, क्या इस चैप्टर का नाम का मतलब है एंड इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सो एक थोड़ी सी वार्निंग है यहाँ पर. चैप्टर बहुत इजी है, पर कब? जब हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे. एक भी चीज़ मिस करेंगे तो चैप्टर वहीं से गड़बड़ हो जाएगा, उसके बाद हमें कुछ भी और चीज़ें नहीं आएंगी. सो अगेन बहुत इजी सा चैप्टर है, साथ में पढ़ते हैं, साथ में देखते हैं क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स सी क्या क्या है इस चैप्टर में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो वी हैव these few things that we'll be learning in this chapter. First, we'll go through the introduction of this chapter, then solving equation which have linear expression on one side and numbers on the other side. Then we'll see some application based on the second part. Solving equation having the variables on both the side. Here we'll learn to solve the equation in which we have variable on both the side. Again, the next part we'll do some application of this, the fourth part. Then we have reducing equation to simpler form. Here we'll learn if we have equation, then how to reduce the equation to its simplest form. Then we'll see some examples of equation which are reducible to the linear form. So ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन इस चैप्टर में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, दैट व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर. क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या है इस चैप्टर का नेम और इस चैप्टर के नेम का क्या मतलब है. सबसे पहले तो यही चीज़ें सीखते हैं. सो फर्स्ट, इससे पहले हमारी अर्लियर क्लासेस में भी हम थोड़ा सा जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. लीनियर इक्वेशंस नहीं भी पढ़ा है, बट वी ऑल नो व्हाट वी मीन बाय expression, algebraic expression and equations. So we came across some algebraic expressions and equations in our previous classes as well. So expressions क्या होते हैं, equations क्या होते हैं, I hope we all know. नहीं पता है तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है. So here we have some expression of algebraic expression, like 5x is an algebraic expression, 2x minus 3, 3x plus 4, 2xy plus 5, xyz plus x plus y plus z. Then we have x square plus 1 and y plus y square. ये सभी जो हमें यहाँ दिख रहे हैं कुछ फॉर्मेशंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं algebraic expressions. अब algebraic expression, as we all know, algebraic expression है मीन्स कुछ variables हैं, कुछ constants हैं, कुछ coefficients हैं, correct? But we'll not be deal with expressions in this chapter, we'll deal with the equations. So equations क्या होती थी? Equations like when we'll put an equality sign with the expression, so it will become an equation. Equality sign के आते ही you can see an equality sign here. So इस equality sign के आते ही ये जो expression है वो change होता आता है हमारे equations में. So clear? equations होंगी, इस पूरे चैप्टर में हम equations से ही डील करेंगे और equation है तो हमें ये equals to sign भी वहाँ पर मिलेगा. So you can write any equation. If I write this expression 2x plus 5 and I'll put an equality sign here and put a 0 on this side, so it will become a equation here. It will, इसे हम एक equation बोलेंगे because सिर्फ ये equals to sign यहाँ पर आ गया, equality sign यहाँ पर आ गया. तो ये जो इतना सा algebraic expression था, now it becomes यहाँ पर equation. अगर इक्वेशन कैसे भी हो सकती हैं, इसे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं. y प्लस वाई स्क्वायर
will be equals to 0 or anything else. तो इन सारे इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इक्वल्स टू साइन है ये इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है. अब इक्वेशंस कुछ भी हो सकते हैं. अगर यहाँ पर हमारा इक्वल्स टू साइन है, इक्वलिटी साइन है, सो दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इट विल बी नोन एज LHS और वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड. दिस विल बी नोन एज RHS. अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ज़ीरो होगा RHS में. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पर भी बहुत सारे इस टाइप के एक्सप्रेशन हमें नज़र आ सकते हैं. सो LHS एंड RHS दो पार्ट्स हो जाते हैं हमारे जब हमारे पास इक्वालिटी साइन आ जाता है एक्सप्रेशन के अंदर और इक्वेशन वो फॉर्म करता है. अब इस चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो इक्वेशन क्या है वो तो हम समझ गए. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर का क्या मतलब होता है. सो आई थिंक ये भी हम पहले से जानते हैं. लीनियर मीन्स हमें ऐसी इक्वेशंस देखनी है जहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पावर, जो डिग्री भी हम बोलते हैं, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है. सो हाईएस्ट पावर हम देखें इन एग्जाम्पल्स में से. सो हाईएस्ट पावर, अब पावर की बात हो रही है, एक्सपोनेंट की बात हो रही है, मीन्स पावर कहाँ होती है, हमारे वेरिएबल पार्ट में जनरली हम देखते हैं पावर होती है. सो इक्वेशंस और एक्सप्रेशन में तो हमारे वेरिएबल पार्ट पर ही पावर होती है. सो हियर इस x पर हमारी कोई भी पावर नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पर है 1. और इस 1 के रदर देन हमें कोई भी यहाँ पर पावर नहीं दिख रही है. मीन्स ये जो इक्वेशन है इट विल बी ए लीनियर इक्वेशन. इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, सो इन दिस इक्वेशन हियर वी हैव x एंड हियर वी हैव y. दो वेरिएबल है तो इन दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो 1 पावर है, करेक्ट. लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमें ग्रेटर देन 1 एक पावर दिख रही है विच इज़ 2. यहाँ पे पावर है 1, एक्सपोनेंट है यहाँ पर 1, बट हियर वी हैव 2. सो 2 पावर आते ही ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा. तो लीनियर इक्वेशन मीन्स इट हैज़ टू बी अ डिग्री ऑफ 1, मीन्स जो हाईएस्ट पावर है हमारी वो हमेशा हमेशा होनी चाहिए 1. तो लीनियर इक्वेशन हम कहीं नोट डाउन कर सकते हैं. तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसकी हाईएस्ट पावर होगी इज 1. इससे बड़ी अगर हमें कोई पावर दिख जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. तो इस चैप्टर में जो हम इक्वेशंस के साथ डील करेंगे वो सारी की सारी होंगी लीनियर इक्वेशन. तो इक्वेशन समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन समझ आ गया. नाउ इस चैप्टर का और भी बड़ा नाम है विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब ये वन वेरिएबल का क्या मतलब है, लुक हियर. अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन की और इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन जहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है. अब अगर हम ये इक्वेशन लिखें या फिर हम लिख लेते हैं इस तरीके से, या फिर हम लिख लेते हैं इस तरीके से, तो वेरिएबल क्या होता है पहले वो देखते हैं. सो हियर दिस अननोन वैल्यू, ये जो अननोन वैल्यू होती है इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल, करेक्ट. तो इस चैप्टर के नेम में ही है वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो पूरी इक्वेशन हम डील करेंगे वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए. इफ़ वी आर वर्किंग ऑन x तो हमारी पूरी इक्वेशन में x होना चाहिए. इफ़ वी आर वर्किंग ऑन y वी हैव अ इक्वेशन लाइक दिस,
सो ये भी हमारी एक वन वेरिएबल में ही इक्वेशन है, बिकॉज हियर वी हैव y ओनली, y के अलावा y के रेदर देन कोई भी और वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन के नाम के साथ, हमारे चैप्टर के नाम के साथ जा रहा है। लीनियर इक्वेशन है, यस लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, सो यस वन वेरिएबल में है। सो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हियर यू कैन सी एक x है एंड एक y है। लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन है ये, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। तो अगर हमारे चैप्टर का नेम होता सिर्फ लीनियर इक्वेशन तो हम वहाँ पर इसे सॉल्व करते, बट हियर द कंडीशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब हम यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल आ गए। अब x और y नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, a b c d, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल कुछ भी है, बस हमने उसको एक अल्फ़ाबेटिकल सिंबल दे दिया है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आई होप सबको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इक्वालिटी साइन से डिफाइन करते हैं। लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए इन वन वेरिएबल, मीन्स जो ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये पूरी इक्वेशन में एक ही होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है बट सेम टाइप का होना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर से एक और इक्वेशन ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर है 1 और वेरिएबल है 1 और इक्वल्स टू का साइन है, तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो LHS RHS पार्ट हम देख चुके हैं। इक्वल्स टू का साइन जो है वो हमारी इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस वन इज LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज RHS राइट हैंड साइड। वेरिएबल ये जो है अननोन वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल टर्म लिखी हुई दिखेगी। इन न्यूमेरिकल टर्म्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। सो हियर 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और कोई वेरिएबल होता, उसके साथ कोई नंबर होता, तो वहाँ पर हम उसे उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। नाउ वी हैव दिस थिंग 2, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये जो 2 है ये हमेशा 2 ही काउंट होगा, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। सो वी विल से इट एज एन कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारी एक इक्वेशन के, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा था, ये जो टर्म लिखी थी, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। नाउ हम सब बता सकते हैं वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कौन सा पार्ट LHS है, कौन सा पार्ट RHS है, इक्वेशन है या नहीं है, राइट? तो यही है हमारे पूरे चैप्टर के नेम की समरी, कि चैप्टर का जो नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उस चैप्टर में हमें क्या डील करना है और किस टाइप की इक्वेशन से हम डील करेंगे, कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में अभी तक हमने क्या क्या देखा। सो एन algebraic expression is an equality involving variables. We have seen वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेलिटी साइन होता है, तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इट हैज़ एन इक्वेलिटी साइन, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वेलिटी साइन इज द LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेलिटी इज नोन एज RHS, राइट हैंड साइड। In an equation, the values of the expression, now ये थोड़ी सी एक important चीज़ है, on the LHS and RHS are equal। अब इस equality sign का मतलब क्या होता है? equals to sign हम कब अप्लाई कर रहे होते हैं? तो equals to sign डिनोट करता है कि जो both LHS and RHS हैं, they has to be equal। equality sign जो है वो equal condition ही शो करता है, हम कहीं पर भी इक्वालिटी साइन नहीं लगाते। इफ़ आई एम राइटिंग 5 and 5, सो दीज बोथ 5 आर इक्वल,
दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस इक्वल्स टू साइन इन बिटवीन, करेक्ट। तो ये जो इक्वल्स टू साइन है ये बेसिकली बता रहा होता है कि ये दोनों चीज़ें हैं ये आपस में बराबर हैं। तो हमारे इक्वेशन में भी जब इक्वलिटी साइन आ रही होती है, सपोज इक्वेशन इज दिस, तो इसका मतलब होता है दैट दिस LHS एंड दिस RHS हैज़ टू बी इक्वल। ये जहाँ पर भी इक्वल्स टू साइन लगा है उसके बाद जो पार्ट्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों ही पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल्स टू साइन जो है वो हमारा ये इंडिकेट करता है। अब इन इक्वल्स टू साइन के लिए हम कैसे बताएंगे कि ये हमारा LHS या RHS जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर देखने पर तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो वो हमें पता चलता है वो डिपेंड करता है इस वेरिएबल पर। मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जिसे अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें इस वेरिएबल से तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो 7 में कन्फर्म हो जाएगा। तो मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम यहाँ पर रखें, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। कुछ भी रखने पर ज़रूरी नहीं है ये हमें 7 ही मिले, लेकिन कुछ एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसे यहाँ पर पुट करने पर ये पूरा का पूरा LHS साइड जो है वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि RHS साइड पर 7 है। तो ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर ये पूरा का पूरा LHS और RHS इक्वल हो जाए उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो इस पूरे चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं मींस हम इन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि इन वेरिएबल को अगर हम हटाएं और इसकी जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि उसे सॉल्व करने पर LHS इक्वल्स RHS आ जाए, तब हम उसे बोलेंगे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर? Now this question comes to our mind that how to find the solution of an equation. So, equation देख ली, solution क्या होता है वो भी देख लिया, लेकिन इसे find out कैसे करना है ये एक main important question है इस chapter का। So as I told you, हम इस पूरे chapter में यही सीखने वाले हैं कि given different linear equation in one variable को solve कैसे करते हैं, और solve करना means उनका solution find out करना, और कैसे हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो मे बी यू हैव लर्न दिस, नॉट मे बी, येस वी हैव लर्न दिस इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो दैट वी हैव सम डिफरेंट मैथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन, करेक्ट। पहले भी हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व करी है और वहाँ हमने सीखा है क्लास 7th में कि हम किन मैथड्स के बेसिस पर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो मैथड्स हमने वहाँ भी सीखी हैं। तो उन्हीं मैथड का हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि हम कैसे किस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो LHS और RHS ये दोनों ही साइड हैं, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। मींस हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं क्लास 7th में दैट इट इज़ लाइक अ वेइंग पैन, करेक्ट। तो वेइंग पैन में क्या होता है, अगर हम बोथ साइड इक्वल अमाउंट का इक्वल वेट का ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं तो इस ये बैलेंस मेंटेन रहता है, इस बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो इक्वेशंस में भी यही कंडीशन होती है, हम LHS और RHS को सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम अमाउंट हम दोनों पार्ट में रख रहे हैं। अब सिमिलरली यहाँ पर हम सेम वेट का कोई ऑब्जेक्ट हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करते हैं। इक्वेशन के बेसिस पर भी हम बोथ साइड से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने LHS पार्ट्स में कुछ ज़्यादा सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पर कम सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी। इस कंडीशन में ये जो है हमारी इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व नहीं होती। मीन्स बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना है, बैलेंस मेंटेन करना है बोथ साइड पर। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम यहाँ पर खुद से चीज़ें ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी क्लियर कि हम दोनों साइड जो है वो सेम ऑपरेशन कर रहे हों। अगर हम किसी एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं LHS को तो हम सेम नंबर से RHS को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे।
क्लियर? तो चलिए यही सीखना है हमें कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प। तो हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के बेसिस पे सीखेंगे कि सॉल्विंग एन इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड न्यूमेरिकल ऑन द अदर साइड। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन सॉल्व करना सीखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन होंगी जहाँ पर हमारे वेरिएबल जो हैं वो सारे के सारे एक साइड पर होंगे, वेदर इट इज़ LHS और RHS कहीं पर भी हो सकते हैं, बट वो जो वेरिएबल है वो एक ही साइड पे होगा, मतलब डिस्क्रीट वे में नहीं होगा। एंड दूसरे वाले साइड पे हमें सिर्फ नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पर एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कैसे इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं जिनके वन साइड पे वेरिएबल है और वन साइड पे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, जो हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो अदर साइड पे हैं। तो ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चीज़ें जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी अपने आप में हमें सिंप्लीफाइड वे में मिलने वाली है। वी जस्ट नीड टू सॉल्व दी इक्वेशन। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्लास 7th रिकॉल करते हैं। वहाँ भी हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है। अब वहाँ जब हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे तो हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी इक्वेशन सॉल्व करने की। कौन कौन सी मेथड्स थी वो? ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। तो अब हम थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो ट्रायल एंड एरर तो हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ ए मेथड विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So either we'll go by the systematic method or we'll go by the ट्रांसपोजिशन मेथड। अब दोनों ही मेथड आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लग रही हो वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी सिस्टमैटिक मेथड देखते हैं। एज आई टोल्ड यू, सिस्टमैटिक मेथड जो होती थी वो बैलेंस मेंटेन करती थी, मतलब हम बोथ साइड किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे जैसे हमारी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? वापस से आते हैं इस इक्वेशन पर। सो हियर वी हैव 2x - 3 = 7। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है इसके साथ ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इन्हें सबको हमें यहाँ से हटाना है। क्लियर? तो हटाने के 2 तरीके हैं, शिफ्टिंग मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड। चलिए पहले शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, ताकि हमें रिवाइज हमें दोनों ही करनी है, आनी हमें दोनों ही चाहिए, बट एट लास्ट हमें कोई एक ही यूज़ करनी है। तो रिवाइज कर लेते हैं सिस्टमैटिक मेथड। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें हटाना किसको है, किसे हमें यहाँ से हटाना है। 2 केस दिख रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है। तो हमें पता है एक इक्वेशन में अगर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो उनमें पहले हम इस मैनर में जाते हैं, करेक्ट। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले हम जो कंपोनेंट्स हटाते हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले होते हैं। मीन्स हम पहले इस 2 को नहीं हटाएंगे, हम पहले इस 3 को हटाएंगे, क्योंकि यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले किसे हटाना है। तो हमेशा पहले हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाले सब्सटेंट को यहाँ से हटाते हैं। तो अब हटाने की बात हुई है, हटेगा कैसे ये, कैसे हम इसे यहाँ से शिफ्ट करेंगे? तो ट्रांसपोजिशन में तो हमें पता है, सिस्टमैटिक में हम क्या करते थे, हम इसी नंबर से इसके अपोजिट ऑपरेशन के साथ दोनों जगह अप्लाई कर देते थे। लाइक इफ़ हियर वी हैव 3, मतलब हम दोनों साइड 3 लेकर आएंगे, और यहाँ ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो हम दोनों साइड इसको ऐड करेंगे, राइट। चलिए कर लेते हैं। स्टेप 1, ऐड 3 टू बोथ साइड। अब ये कोई बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि ऐड क्यों किया है और 3 से ही क्यों किया है, क्योंकि पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मैम ने। क्यों कर रहे हैं 3? क्योंकि 3 नंबर हमें हटाना है। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसीलिए अब हम इसे बोथ साइड ऐड कर रहे हैं।
सो ऐड किया तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x माइनस 3 प्लस 3, ये हम खुद से लेकर आए हैं। 7 ऑन RHS प्लस 3, ये हम खुद से लेके आए हैं। तो 3 बोथ साइड ऐड करने पर हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब क्या नेक्स्ट, तो याद नहीं करना है, समझना है। समझने के लिए आते हैं इस इक्वेशन पे। तो हमें पता है हम अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो हमें मिल गया -3 + 3 0, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2x लिख दिया। इक्वल्स टू साइन एज इट इज़ 7 + 3 = 10। यहाँ पर हमारी प्रीवियस स्टेप से क्रॉस आउट करते चलिएगा कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सारी लिख ली है, जो सॉल्व हो रही थी वो हमने सॉल्व कर ली। अब इस पार्ट में, LHS पार्ट में हमारा कोई भी एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं है। नाउ वी जस्ट नीड टू रिमूव दिस 2। इस 2 को x के पास से हटाना है। तो 2x के साथ लिखा है, इसका क्या मतलब, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का केस है तो हम डिवाइड लेंगे। डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका अपोजिट कर लेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सो स्टेप 2, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाय 2। सो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन 2x as it is divided by 2 equals to sign as it is. Here we have 10 on RHS, so 10 by 2. डिवाइड करना है, पता है हमें कॉमन फैक्टर से हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब LHS की बात करें तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ x, और RHS में हमारे पास बच रहा है 5। लिख लेते हैं। सो हियर वी हैव x equals to 5, मीन्स x की वैल्यू आ गई 5। और हमें क्या करना था, हमें सॉल्व करना था, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया एज 5। क्लियर। तो यही हमारा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने सीखा कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होना है, कब, जब हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो सारे के सारे वन साइड पे हैं और अदर साइड पे हमारे पास नंबर्स हैं। तो यहाँ हमने यूज़ की है सिस्टमैटिक मेथड। आप चाहें ट्रांसपोजिशन करना है तो आप ट्रांसपोजिशन से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चेक अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को हमारे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हम चेक करेंगे कि हमको दोनों साइड पर सेम पार्ट मिल रहा है या सेम न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो सेम न्यूमेरिकल मिलेगा मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं मिलेगा तो करेक्ट नहीं है। फिर हम वापस से चेक करेंगे कि कहाँ हमने कुछ फॉल्ट किया है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ से सीखेंगे क्या करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 इज हियर। सॉल्व 2y + 9 = 4। यू कैन सी यहाँ पर भी जो हमारा वेरिएबल है वो पूरा एक साइड पर है, LHS पर है, और RHS पर हमारे पास सिर्फ एक नंबर है। क्या करना है, सॉल्व करना है, मीन्स इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लिखा हो या सिर्फ सॉल्व करने के लिए लिखा हो, दोनों का ही मतलब है कि हमें इस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं, बट दिस टाइम लेट्स यूज़ दी ट्रांसपोजिशन मैथड। यहीं पे सॉल्व करते हैं। 2y + 9 = 4, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। अब हमें पता है सबसे पहले हम किसे रिमूव करेंगे, y लेकर आना है तो ये 2 और 9 दोनों ही लेकर जाना है हमें। लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे ट्रांसपोज करेंगे। क्या करना है, इसे भेजते हैं हमारे RHS साइड पर, ये यहाँ पर एडिशन में है तो हम इसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भेजेंगे। सो 2y as it is, this equals to sign as it is, this 4 as it is, now 9 comes here with negative sign।
और इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें, सिस्टमैटिक मेथड की लैंग्वेज में हम बोलें तो हमने क्या किया, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 9 फ्रॉम बोथ दी साइड। सो 9 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमें यही पार्ट मिलेगा। सो वो लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हैं। ओके, सो एडिशन का केस था, शिफ्ट हो गया सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में जाता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2y एज इट इज, 4 - 9 -5 इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, सॉल्व करना आता है। सो 9 - 4 is 5, 9 is greater than 4, so that's why we are taking the negative sign here. So at the end we are left with -5 on RHS and 2y on LHS. क्या करना है अब, इस y को अकेला करना है, 2 को भी शिफ्ट करते हैं, 2 साथ में लिखा है मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम ट्रांसपोज करेंगे टू RHS, so it will come here in the denominator. अब एक बार नज़र डालते हैं हमारी इक्वेशन पे, y को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, y तो वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, y लिखा हुआ है। 5/2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं, मीन्स यही क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारी -5/2। अब ये है एक रैशनल नंबर, करेक्ट, इससे पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो रैशनल नंबर ही था। तो ये हमारा आंसर जो है, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही है एक रैशनल नंबर में। तो यहाँ पर जब हम हमारी पुरानी क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वहाँ कभी हमें रैशनल नंबर नहीं मिला था, करेक्ट, लेकिन रैशनल नंबर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कभी कभी इस तरीके से वैल्यू आती है, इसीलिए हमने रैशनल नंबर पढ़ा। और अब इस चैप्टर में बहुत कॉमन है कि हमें सॉल्यूशंस जो हैं वो रैशनल नंबर में भी मिल सकते हैं। क्लियर, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट हुआ सबको समझ आया है ना। ट्रांसपोजिशन मेथड किया है, आप चाहें तो सिस्टमैटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 इज y इक्वल्स टू -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है। कितना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है x/3 + 5/2 इक्वल्स -3/2। अब इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए वो सीखते हैं। तो मेथड जो यहाँ पर है वो भी सेम ही है। अब रैशनल नंबर देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एज वी नो, रैशनल नंबर को भी हम नॉर्मल नंबर की तरह ही सॉल्व करते हैं, ऑपरेशंस जो हैं वो वैसे ही अप्लाई होते हैं, जस्ट इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपल, फिलहाल तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हम करते थे। हमारे वन साइड पे सारे वेरिएबल हैं और वन साइड पे सारे के सारे नंबर्स हैं। लिख लेते हैं हमारा इक्वेशन एज इट इज, x/3 + 5/2 इक्वल्स -3/2। अब हमें पता है सबसे पहले जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसे हम शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पर 5/2 जो है वो ऐड हो रहा है, इसे शिफ्ट कर लेते हैं हमारे LHS पर, सॉरी LHS से RHS पर, मतलब ट्रांसपोजिशन हम कर रहे हैं। सो दिस x/3 इज एज इट इज, -3/2 as it is. Here we have positive sign, so it will convert to negative sign, and 5/2 is here. अब क्या है, x/3 फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, -3/2 -5/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। बोथ आर रैशनल नंबर्स and we know very well how to solve the rational numbers. So let's check the denominator. In both the number we have denominator as 2. मीन्स यहाँ पर अच्छी बात यह है कि LCM लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो x/3 एज इट इज़ लिखते हैं, 2 को 1 टाइम लिखते हैं, -3 -5 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जो हो रहा है मीन्स -3 -5 सॉल्व हो रहा है। सो -3 -5 -8/2। नेगेटिव नेगेटिव हम एडिशन पे जाते हैं, एडिशन किया 3 + 5 8 और नेगेटिव साइन दोनों के साथ है तो बड़ा नंबर 5 है एज वी नो,
तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। नाउ वी हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 2, तो उन्हें उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8. So now we have x by 3 on LHS and minus 4 on RHS. कुछ मिस तो नहीं किया, क्रॉस चेक कर लेंगे। तो माइनस साइन ले लिया है हमने, 4 ले लिया है, डिनोमिनेटर में 1 है और 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नाउ वी हैव x by 3 इक्वल्स माइनस 4। इसे कैसे सॉल्व करना है, तो अब हमें इस 3 को रिमूव करना है यहाँ से। 3 को देखेंगे 3 किस ऑपरेशन में है, तो 3 डिवीजन के ऑपरेशन में है। सो डिवीजन है तो हम भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में। चलिए, तो x एज इट इज equals as it is, now minus 4 as it is and 3 comes here in multiplication. Simple. या फिर हम बोलें कि हमने both side 3 से multiply किया है, multiplying both side by 3. So after multiplying both side by 3 we are getting this stage, x equals to minus 4 multiplied by 3. अब simple multiply हो रहा है तो multiply कर लेते हैं। So x is equals to 4 3s are 12 and with a negative sign because we have opposite signs of the multiplicand. Clear? So solution of this equation is x equals to minus 12, means minus 12 वो वैल्यू है जिसे अगर हम इस x की जगह सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें LHS इक्वल्स RHS मिलेगा। तो वापस से आते हैं, क्या मेन टारगेट था हमारा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो कैसे की इक्वेशन, कोई नया लॉजिक नहीं लगाया है हमने, जस्ट हम वही ट्रांसपोजिशन मेथड करते गए। रैशनल नंबर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसपोजिशन करते गए। फिर जहाँ हमें रिक्वायरमेंट हुई रैशनल नंबर सॉल्व करने की, वहाँ हमने उन्हें सॉल्व किया है एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज सिंपल। करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So example number 4. Let's go to the next example. So example number 4 is here. Now again we have a different type of equation here. क्या different है इस equation में, एक rational number है। अब जो हमारा वेरिएबल अभी तक इक्वेशन के स्टार्टिंग में हो रहा था, अब वो सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। एंड लेकिन इसमें सिमिलर चीज़ वही है कि हमारे एक साइड पे वेरिएबल है एंड अदर साइड पे हमारे नंबर्स हैं। सो अगेन वील अप्लाई दी सेम प्रोसेस, सेम मैनर में ही हम इसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। कैसे करना है चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर का केस है तो स्टार्टिंग में हमें रैशनल नंबर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे वापस से देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे शिफ्ट करना है एंड हियर द नंबर इज 15/4। हम 7 को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे ही पहले सॉल्व करेंगे, इसे ही पहले ट्रांसपोज करेंगे टू द नेक्स्ट साइड। सो अब इस नंबर को शिफ्ट करना है तो हम देखेंगे इसके आगे साइन क्या है। अब ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि इसके बाद ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो हम इसलिए जाके यहाँ पर ऐड कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मार्क दिस, क्या करना है, इसके आगे का साइन चेक करना है। सो हियर वी हैव अ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है तो इसका खुद का साइन पॉजिटिव है, तो हम इसके खुद के साइन को चेंज करेंगे, नॉट दिस नेगेटिव साइन। ओके, सो दिस नेगेटिव साइन इज विथ -7 with 7x, so I'll write this minus sign with 7x only, उसे हमने as it is लिखा है, equals to sign as it is, 9 is as it is at its place, just shift this from here to here। so इसका साइन as I told you पॉजिटिव है तो यहाँ लाके हम उसे नेगेटिव करेंगे and we'll write 15/4। अब यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है, हम क्या करते हैं, यही गलती बार बार करते हैं कि हम ये वाला साइन देखते हैं। नो, जिस नंबर के साथ जो साइन होता है वो उसका खुद का साइन होता है। सो ये जो 7 माइनस 7x लिखा है ये -7x के साथ है। ऑपरेशन हम डिसाइड करेंगे इसके खुद के साइन से विच इज़ पॉजिटिव, सो इट विल बिकम नेगेटिव आफ्टर कमिंग टू RHS।
क्या करना है, -7x के साथ हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो हमने इसे एज इट इज लिख दिया. नाउ here we have 9 and -15/4 means we need to take the LCM here of 1 and 4. 1 and 4 का LCM लेकर फिर उसे एक्सप्रेस कर ये पूरी प्रोसेस यहाँ दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम चाहें तो हमारे रफ वर्क में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ पर LCM लेंगे. सो if you will take the LCM of 1 and 4, it will come out as 4 only. Now 36 minus 15. अब 36 क्यों आया, क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. सो 9 4s are 36. यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 4 था, सो इसीलिए इसका न्यूमरेटर चेंज नहीं हुआ. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो -7x एज इट इज, 36 minus 15. सो 6 minus 5 1, 3 minus 1 2, 4 as it is. अब यहाँ पर हमें मिल गया है 21/4 on RHS and -7x on LHS. चलिए अब अगेन क्या करना है, इस 7 को यहाँ से शिफ्ट करना है. अब ये 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है. -7x जो है, -7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का केस जाएगा डिवाइड में, करेक्ट. तो अब हम इस -7 को एंड मेक श्योर कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन चेंज बिल्कुल भी ना करें जब हम मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में लेकर जा रहे हैं या फिर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेकर जा रहे हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही हमारा साइन चेंज होता है. सो ये जो -7 है अभी एज इट इज़ रहेगा, जस्ट ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में है, तो यहाँ पर आने के बाद ये डिवीजन हो जाएगा. या फिर आप थोड़ा सा सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डिवाइड बोथ साइड बाय -7. हम बोथ साइड -7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर इस -7 को हटाना है. तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, -7x डिवाइडेड बाय -7 and 21/4 divided by -7. साइड में लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -7. क्लियर. अब -7 x will be cancel out. So here we are remaining with x only. इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनल नंबर के साथ डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, we'll convert the second rational number into its reciprocal and this division sign will come out as the multiplication sign. So 21/4 as it is, division sign will become multiply and this -7 minus sign in the numerator and 7 in the denominator. अब चेक करते हैं क्या किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं. सो 21 and 4 में तो नहीं मिल रहा, 21 and 7 में मिल रहा है, तो हम इसे यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो 7 1s are 7, 7 3s are 21 एंड 4 and 1 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, सो उन्हें एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं. सो 3 हियर एंड -1 हियर, 3 1s are 3 and with the negative sign, and here we have 1 only, so 4 1s are 4. So here we have the value for x as -3/4. So again यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है एक रैशनल नंबर फॉर्म में. कैसे आया हमने देखा, 1 by 1 हम सिर्फ अपना स्टेप फॉलो करते गए, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इसके बाद ऐसा ही करना है. नो, हमें पता है हमारी ट्रांसपोजिशन मेथड जो हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जस्ट हमने ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई करी है. 1 by 1 हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते गए एंड एट द एंड वी गॉट द आंसर एज -3/4. So today we have seen some different type of equation and one thing is common in these equation as जो भी वेरिएबल पार्ट था वो एक साइड पे था और जो भी नंबर्स थे वो
अदर साइड पे थे। तो इस तरीके से हम इस टाइप्स की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ टेक सम क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चंस अप्लाइंग दीज प्रॉपर्टीज एंड चेक बन रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं। So yes, that's it for today's video. Now we will meet in the next video where we'll start the exercise 2.1 and we'll solve the questions on this exercise. So stay tuned for the video. Thank you so much.